आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के ट्रेड को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात याद दिला दी। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। Who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft. उन्होंने पाकिस्तान को सनद तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है। पहले भी उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी भी साथ चल रही हो और साथ में ट्रेड भी चल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले भी ये कह चुके कई मरतबा। आखिर भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे तो कैसे करे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को कश्मीर के नाम पर सिर्फ दहशतगर्दी के सिवा दिया ही क्या। तो जब इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल कि आओ कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले आओ दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা, আপনারা তো খবরটা অবশ্যই শুনেছেন যে অবশেষে পাকিস্তানের বুদ্ধি মাথায় এসেছে। তারা এখন চায় ভারতের সাথে বিজনেস করতে। পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী তারা ভারতের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে যে আমরা সবকিছুকে ভুলে আমরা পাকিস্তান আর ভারত একসাথে মিলে আবার ব্যবসায় পুনরায় চালু করতে চাই। যেটা হোক, এর উপর তো আমি আপনাদের অলরেডি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তারপরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারের তরফ থেকে যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে না, সেটাকে শুনে পাকিস্তানের প্রচন্ড পিছনে লাগে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এমনকি পাকিস্তানের মিডিয়াতে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারের যে স্টেটমেন্ট, সেটাতে তাদের পিছনে অনেক জ্বলে। একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানিরা ভারতকে বলতো ভারতের সাথে কোনো কিছু করার জন্য একটাই শর্ত রাখতো, সেটা হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর, যে আগে টেবিলে বসো, জম্মু কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করো, তারপরে কোনো বিবাদিত মীমাংসা বা কোনো রকম বিজনেস তোমাদের সাথে আমরা করব। কিন্তু দেখুন, দুটো দেশ রয়ে গেছে কিন্তু সময় সম্পূর্ণ পরিবর্তন। 2019 সালে তারা যখন ভারতের সাথে সম্পূর্ণ ব্যবসাকে বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপরে কিন্তু তারা ভেবেছিল যে ভারত পাকিস্তানের হাতে পায়ে ধরে ব্যবসাকে পুনরায় চালু করবে, কিন্তু মোটেও এরকম কিছু হয়নি। বরং উল্টে তারাই এখন তাদের অর্থনীতিকে আবার ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারতের হাত পায়ে ধরে বলছে যে আপনাদের সাথে আমাদের ব্যবসা আবার পুনরায় শুরু করুন, কেননা আমরা যে সমস্ত মালগুলো শিপমেন্ট করে বিদেশে পাঠাবো, সেই শিপমেন্ট করার জন্য আমাদের কাছে কোনো পয়সা নেই। যাই হোক, এই কথা শোনার পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি কড়া ভাবে উচিত জবাব দিয়েছে পাকিস্তানকে। হ্যাঁ, যদিও জবাবটা বিজনেসকে নিয়ে নয়, জবাবটা ছিল এরকমই যে টেবিলে বসে কথাবার্তা তখনই হবে যখন পাকিস্তান গোটা দেশ থেকে তাদের সন্ত্রাসবাদকে মুছে ফেলবে। পাকিস্তানের যে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা পিওকেতে লঞ্চপ্যাড করেছে, যেগুলোকে সম্পূর্ণ নির্মূল করবে, তারপরেই কিন্তু আমরা টেবিলে বসে এই ব্যবসাকে নিয়ে আলোচনা করব। কেননা একই টেবিলে বসে একদিকে সন্ত্রাসবাদ, অপরদিকে ব্যবসা, এটা কখনোই চলতে পারে না। কেননা এক নদীতে খুন, অপর নদীতে জল যেতে পারে না। যে কোনো একটাকে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনার আগে আপনাদের দেশের সন্ত্রাসবাদকে মেটাবেন, না আগে আমাদের সাথে ব্যবসা করবেন। বাকিটা আপনার উপর ডিপেন্ড করছে, কেননা আপনাদের দেশ তো গোটা দেশটাই সন্ত্রাসবাদের আতুরঘর হয়ে উঠেছে। বাকিটা আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনারা কোনটা করবেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি এরকম টাইপের স্টেটমেন্ট দেয়, তার এই স্টেটমেন্টে পাকিস্তানিদের ভীষণ জ্বলছে। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज, वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। आप वज़ीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है।
क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाए। वज़ीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पार्टी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहां पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहां पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जाने। डॉक्टर फिजा अकबर खान, दहशतगर्दी हम लोग नहीं, आप लोगों ने फैलाई है कश्मीर में और भारत में भी। और बात की जाएगा ट्रेड की, तो भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा अब, क्योंकि उसे अब पसंद नहीं है अब कि भारत के अंदर दहशतगर्दी दोबारा हो। साबिक वजीर खजाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वजीर खारजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक़ राय नहीं हुआ है। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहां पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े है। चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही हो। तो बंधुरा ভিডিওটি তো শুনলেন কি বলছে তারা। যাই হোক বন্ধুরা, এর উপর আপনাদের কি মতামত? যেভাবে ভারতের জম্মু কাশ্মীরে পাকিস্তানি শুয়োর ফ্যাক্টরি শুয়োর দিয়ে লাগাতার ভারতীয় আর্মি থেকে শুরু করে ভারতের ক্ষতির চেষ্টা করছে, এবার আপনারা বলুন আদৌ কি পাকিস্তানের সাথে আমাদের কোনো রকম বিজনেস করা উচিত? আর ওদের সাথে বিজনেস না করলে আমাদের তেমন কোনো একটা ক্ষতি হয় না, কেননা 2019 থেকে 2024 সাল থেকে এই 5 বছরে আমাদের তেমন কোনো একটা ক্ষতি হয়নি, বরং আমাদের প্রফিট বেড়েছে। আমরা বিদেশে আরো বেশি বেশি করে, বিশেষ করে ইউরোপের মতো দেশগুলোতে আমরা আমাদের পণ্যকে এক্সপোর্ট করছি। তাই এমতো অবস্থায় এবার আপনারা বলুন আমাদের কি আদৌ পাকিস্তানের সাথে ব্যবসা করা উচিত? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব আর ভিডিওটিকে লাইক করতে কেউ ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।